Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 10th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the yesterday's meet that happened globally. Democracy doesn't happen by accident. So it was one of the meeting where more than 100 countries came together to discuss about the strategies or discuss about how a democratic country should work. जिसके होस्टिंग या जिसके हेड अगर मैं बात करूं यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी किस बेसिस पे बनता है। एंड एक चीज़ उन्होंने बोली है कि डेमोक्रेसी एक्सीडेंटली नहीं होता है, यू शुड बी प्री प्लान्ड कि आपको अपनी कंट्री कैसे बनानी है, कैसे संभालनी है। उस मीट के बारे में पढ़ेंगे कि ये मीट में क्या क्या चीज़ हुआ, कौन सी कंट्रीज़ थे। इंडिया के साथ फ्राइडे को बोला गया था कि प्रॉपर डिस्कशंस होने वाला है। US President Joe Biden kicked off the day one of a summit for democracy. This summit अगर मैं बात करूँ तो इसका मेन थीम ही हमारा था डेमोक्रेसी, calling on the countries to make a concrete commitments to reform their डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। उन्होंने बोला कि यू शुड शो अस दी प्रूफ, अ कॉन्क्रीट कमिटमेंट दिखाओ कि आप अपने डेमोक्रेटिक कंट्री के फंक्शनिंग के लिए क्या कर रहे हो। Over 100 countries have been invited, as well as civil society actors, members of various parliaments, and private sectors were also invited in this meet. Democracy doesn't happen by accident. We have to renew it with each generation. Mr. Biden, sitting beside his Secretary of the State, Mr. Antony Blinken, told over 50 countries who could be seen on a large screen. The purpose of gathering was not to assert any of the participant countries which were perfect for democracy, but to look arms and reform the shared commitments to make our democracy more better. Being a proper nation, being a proper country, आप कैसे democracy practice करते हो, that was the main aim of this summit, of this meeting. Mr. Biden said that he was launching a presidential initiative for democratic renewal, which, along with US Congress, would commit 224 million towards various democracy related projects. तो जो ये जो 224 million का हमने बात किया, ये प्रूव्ड डेटा है कि इतना अमाउंट जो है वो लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जो कि उनकी डेमोक्रेसी को और भी इम्प्रूव और भी एनहांस करेगा, क्योंकि ये डेटा को रीचेक किया गया था द हिंदू की तरफ से। Calling a free and independent press the bedrock of the democracy, Mr. Biden said that US was launching multilateral efforts to enhance the independent media. He also described a recently announced defamation defense fund by US Agency of International Development to protect journalists from the same lawsuit. So while this meeting was to see the commitment, in addition to launch the initiative plans to make commitment, there would be a year of consultation, coordination and delivery of all the administrative offices. एडिशनल टू दिस ऐसा और एक समिट, जो सेकेंड समिट जो है वो प्लान किया गया करेंगे, जिसमें कि सारी कंट्रीज़ को बुलाया जाएगा ताकि वो लोग एक साल में कितना बेटरमेंट किया है, एक साल में कितना प्रोग्रेस लाया है उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में, कितनी अकाउंटेबिलिटी रखी है, कैसा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है, किस हिसाब से वो लोग अपना डिस्कशन करते हैं, उसको देखने के लिए कि इज़ इट इम्प्रूव्ड और इज़ इट डिक्रीजिंग डे बाय day. And our hope is that through the entirety of this process, we can really have a dialogue between the participant governments and civil societies, and the civil society will hold all the accountabilities according to the official. अनदर ऑफिशियल ने भी ये भी बोला कि जैसे कि जो ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है, या फिर पीरियोडिकल रिव्यूज़ होते हैं ह्यूमन राइट्स, वो सब पे भी मॉनिटर किया जाएगा। वी इंटेंड टू होस्ट अ समिट विद इन ह्यूमिलिटी once again said, we see ourselves as in democratic, not with an answer but as an open and transparency. So earlier this week, White House released another fact sheet saying that Biden administration is strengthening the democracy at home, means US itself, and it is planning to work with the betterment of the democracy.
और Thursday's agenda include two plenary sessions, one hosted by Mr. Biden, and second was by the European Commission. Pre-recorded interventions by the leaders have been scheduled on Thursday and Friday, with Prime Minister Narendra Modi's intervention on फ्राइडे. सो आज का जो और एक मीट होगा उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी डिस्कशंस और बात किए जाएंगे कि कैसे हम हमारी डेमोक्रेसी को इम्प्रोवाइज करें. लुकिंग एट द डेवलप्ड कंट्री, शायद हम भी डेमोक्रेटिक फील्ड पे ज़्यादा फोकस करके उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें. लेट्स सी, कल भी ये चीज़ पे आर्टिकल आएगा. नेक्स्ट हमारा आता है डेटा दैट स्टेट्स दैट कर्नाटका टॉप्स द फर्स्ट डोज कवरेज वैक्सीनेशन. ठीक है, कि कर्नाटका बीइंग अ स्टेट, फर्स्ट डोज कवरेज जो है मेजर ऑलमोस्ट सभी लोगों का हो गया है. ठीक है, कर्नाटका में ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि 100% कवरेज डेटा दिखा रहा है. 100% लोगों ने वैक्सीन ले लिया, ये डेटा दिख रहा है. विथ 94.57% of 4.89 crores eligible populations have been jabbed with the first dose of COVID-19 vaccine till Thursday. Karnataka has moved up to the first position among the largest states to have first term the first dose. मतलब कर्नाटका बीइंग अ स्टेट में 100% मैक्स टू मैक्स ले सकते हैं कि लोगों ने फर्स्ट डोज ले ही लिया है. Karnataka, which stood on the 3rd position in the first dose administration till a week ago, is now followed by Gujarat and Madhya Pradesh. पहला हमारा कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर गुजरात पे आ रहा है, थर्ड हमारा मध्य प्रदेश आ रहा है. ठीक है, जो कर्नाटका है वो 94.5% दिखा रहा है कवरेज. गुजरात जो है 94.46% दिखा है और मध्य प्रदेश 93.83% का कवरेज दिखा रहा है कि इतने लोगों ने डोज लिया है. From 21,1300 average vaccines per day in January, when COVID vaccination was rolled out, the state's daily average rose to 4,83,144 in September. So जो thousands में था, अब डेली वहाँ पर लोग लैक्स में वैक्सीनेशन लगा रहे हैं. While a total of 91,15,528 doses were administered in November itself. सिर्फ नवंबर की बात कर रहे हैं. उसके बाद गुड शो फॉर कड्डकू. ठीक है, कड्डकू अगर मैं बताऊं, दिस इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. सो फार 3 डिस्ट्रिक्ट्स, बेंगलुरु अर्बन, गडगड एंड विजयपुरा, हैव अचीव्ड 100% coverage in the terms of first dose administration, while Kaddaku has covered 99% of the target population of first dose. 12 अदर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें चिक्काबलमपुर, बेलागवी हो गया, फिर दावणगेरे, उद्दिपी, बालारी, उत्तरा कन्नड़ा, ये सब जो है यहाँ पर भी 95% ऑफ कवरेज हो चुका है फर्स्ट वैक्सीनेशन का. So, with the states having administered 3,31,658,9 second doses, 67% of the population eligible for 4.9 crore populations have fully been वैक्सीनेटेड. जो डबल डोज जिन्होंने ले लिया है, तो 90 हमने देखा कि 94.5% लोगों का फर्स्ट डोज हो चुका है. डबल डोज अब तक 67% लोगों ने 67.6% लोगों ने ले लिया है कर्नाटका में. अरुणति Chandrasekhar, the state mission director, National Health Mission, said the focus was now on the second dose. As on December 9, nearly 46,000 people who have taken their first dose are due for the second dose, and we have been prioritizing the people who came for second dose according to them. So it is a good data कि लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं. एंड अप्रॉक्सीमेटली यूजुअली हम डेटा एनालिटिक्स में देखें तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा अगर 1.33 करोड़ लैक्स का जो पॉपुलेशन है, उसमें से आई थिंक सो 100 करोड़ के मतलब 100 ही होगा, 100 करोड़ बिलियन के लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, फर्स्ट डोज कम से कम ले चुके हैं. कुछ अभी भी पिछड़े जगह है, बट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट. बिहार और यूपी जैसी जगह जो हम बोलते हैं कि यूजुअली बहुत अंडर डेवलप्ड है, बहुत रूरल एरियाज़ है, बट वहाँ पे भी अगर आप अंडर द ग्राउंड देखोगे, गवर्नमेंट्स ने इतनी अवेयरनेस दी है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी है कि हर एक जन जाके वैक्सीनेशंस ले रहा है. सो इट इज़ अ गुड थिंग कि प्रिकॉशंस लेके चलो. आगे क्या होगा वी रियली डोंट नो.
चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। कोविड के साथ ही साथ एक दूसरा वायरस या डिजीज़ हम बोले जो अभी ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ अबाउट द बर्ड फ्लू। सो बर्ड फ्लू के बारे में बताया है कि बर्ड फ्लू ट्रिगर हो रहा है, अलर्ट दिया गया है क्योंकि इसके नियरली रैपिड केसेस मिल रहे हैं अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में। So first we'll see the article and then we'll know more about the birds flu, क्या होता है, कैसे होता है। 8,000 to 10,000 ducks were culled by rapid response team after the outbreak confirmed. Alappuzha district was put on alert on Thursday after the outbreak of the bird flu that was confirmed in the ward 10 of Kunumuna South, जो कि आपका तजाकी ग्राम पंचायत में आता है। सो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने बोला H5N1 सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस वॉज रिपोर्टेड इन डक्स। इसकी वजह से वहाँ के डक्स को मतलब वहाँ से निकाला गया ताकि वो और ना फैले। H5N1 क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। टाइप ए वायरस जो है वो डक में मिला था, तो उन्होंने उसको जितना जल्दी वो ख़त्म करने की कोशिश की और लोगों में ये इनिशिएटिव लिया कि चेकिंग स्टार्ट करें ताकि वो ज़्यादा फैलने से पहले बंद हो जाए। A duck farmer from Purakhand who was raising about 13,500 duck close to outer bunch of the paddy field in Tazaki with an eye on Christmas season lost more than 10,000 birds in the past 2 weeks because of this bird flu। 13,000 में से लगभग 10,000 डक्स जो हैं उनके मतलब लॉस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस वायरस। Following the mass death of the duck, the Animal Husbandry Department last week sent a sample of carcasses of this to the National Institute of High Security, Bhopal, for analysis, which have positive for the avians of the AHD. Officials said that between 8,000 to 10,000 ducks belonging to the 5 farmers within 1 kilometer radius have been affected the area and therefore rapid team को बुलाकर उसे खाली करवाया गया। सेल बैंड फिलहाल के लिए ये भी एक फार्मर्स के लिए अगर मैं बात करूँ एक नुकसान हो गया बिकॉज क्रिसमस ऑन द कॉर्नर्स अगर हम बात करें डक से जो भी प्रोडक्शन होता है वो उनका अप्रॉक्सली नेगेटिव में चला जाएगा बिकॉज अ फार्मर हु हैड 13,000 डक्स, जितना प्रोडक्शन उनको उससे मिलता था जिसमें से 10,000 ऑलमोस्ट चला गया। 3,000 मतलब जस्ट कंसिडर 70 to 80% ऑफ द डक का जो भी उनका प्रोडक्शन या जो भी इनकम आता था वो ख़त्म हो गया है। और सेल भी डक का जो है वो बंद कर दिया। डक, चिकन्स और सारे ही डोमेस्टिक जो है ये सब चीज़ों को फ़िलहाल के लिए लोकल बॉडीज़ 9 किलोमीटर रेडियस के अंदर उसको बंद कर दिया गया है ऐसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल के लिए ताकि चीज़ें और ना बढ़े। बिसाइड द प्लेस इन द वार्ड 10 ऑफ द तजाकी ग्रामा पंचायत वेयर द डिजीज वॉज कन्फर्म्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन। द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड व्हीकल फ्रॉम दैट एरिया हैज़ बीन बैन्ड। Mr. Alexander directed the Assistant Conservator of Forest to monitor the migrative birds for avian influenza. Apart from Takazi duck, mortality has been reported from Nedumudi, Alapunza, Venture recent years. तो क्या इसके जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कोट्टयम, नींदूर, फिर अलापुंजा ऐसे सब जगहों पर A5N1 और A5N8 के वायरसेस जो हैं आइडेंटिफाइड किए गए हैं। ठीक है, अब चीज़ों को और समझने के लिए सिंपल से हम देखते हैं कि बर्ड फ्लू कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, किसको अफेक्ट करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो बर्ड फ्लू को अगर हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोले तो हम इसे एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जो कि अगर मैं बात करूँ कौन से 2021 की 2021 में ही हमने मार्च से जून के बीच में देखा था कि ये जो है केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में बहुत मिला था केसेस बर्ड फ्लू का दिस ईयर। ठीक है, सो अनयूजुअल डेथ और ये नंबर्स बढ़ने की वजह से जब स्टेट्स लोगों ने देन दे स्टार्टेड टेकिंग एक्शन बिकॉज वो बढ़ रहा था। अब यूजुअली ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इसके आउटब्रेक के 2 वायरसेस होते हैं, एक H5N1 और एक होता है H5N8।
तो ये जो दोनों टाइप्स ऑफ वायरस हैं, इसके वजह से इंडिया में जो बर्ड फ्लू फैली थी, बिकॉज ऑफ दिस टू वायरसेस इन इंडिया। ये जो बर्ड फ्लू के बहुत सारे अलग अलग वायरसेस होते हैं, अलग अलग टर्म्स दिए रहते हैं, बट इंडिया में जो बर्ड फ्लू हुआ था, जो अफेक्ट हुआ था, वो बिकॉज ऑफ दिस टू वायरसेस। ठीक है, इन्हें हम HPAI के टर्म में क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, विच इज़ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। क्योंकि पाउट्री या फिर यहाँ पर ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, एंड डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हुआ था, क्योंकि एक दो स्टेट्स में नहीं देखा था 2021 में, हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 स्टेट्स में देखा। और इसमें से जो H5N1 जो वायरस है, ये ह्यूमंस को भी हो सकता है। ये वाला वायरस अगर फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि किसी बर्ड में पाया गया, वही बर्ड अगर किसी ह्यूमंस के थ्रू पास हुआ, तो दैट ह्यूमन कैन ऑल्सो बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट वायरस। ये सब वायरस बाकी एनिमल्स और बर्ड्स को होंगे, बट H5N1 जो वायरस है वो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है। So the spread of the disease in the variety of birds in several geographical regions and regional of the migrative birds have prompted the centers to issue, जिसकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान और प्रिवेंशन एवियन इन्फ्लुएंजा 2001 एक एक्शन लिया गया था टू स्टॉप दिस। इसके म्यूटेशंस जो हैं हम नोटिस किए हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसके भी म्यूटेशंस होने लगे हैं ए वायरस के। ठीक है, हाउ इज़ इट सीरियस? अगर हेल्थ मतलब अगर एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा कंटेजिनियस वायरल डिजीज़ है, जो कि बर्ड से स्टार्ट होकर देन ह्यूमन कंजम्पशंस, चिकन, डक, टर्की, क्वाइल्स, सभी तरह के पेट बर्ड्स में भी ये फैल सकता है। WHO ने ये हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इनके साथ कोलैबोरेट करके वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ये जो वायरसेस है इनका आउटब्रेक मतलब लिस्टेड किया कि ऐसे ऐसे केसेस मिल रहे हैं। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें सो कहीं ना कहीं हमारी पाउट्री सेक्टर 2021 में बहुत इफेक्ट हुई थी। सबसे पहली चीज़, क्योंकि चिकन्स और डक के वजह से पाउट्री हमारा अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ जो वर्थ है वो अफेक्ट हुआ था हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसी के साथ हम जो है एक्सपोर्ट्स भी करते हैं वेस्ट एशिया को, ये मीट्स हो गए और पाउट्रीज हो गए, तो वो भी हमारा इफ़ेक्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे होल सेक्टर में ये बढ़ते दिखा था। नाउ अगर मैं इस वायरस की अगर हम बात कर रहे थे, सो ये वायरस जो एक नॉर्मल बर्ड से स्टार्ट होता है, देन इट स्टार्ट्स गोइंग टू डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, इसका जो नेटिव होस्ट है जहाँ से एवियन इन्फ्लुएंजा स्टार्ट हुआ था, इसका नेटिव वाज अ डक। ठीक है, वाइल्ड जो उसका नेटिव होस्ट इज़ अ वाइल्ड डक। ठीक है, जिसमें H1N1 और H1N19 ये दो वायरस हुआ था। फिर इसके बाद ये दो वायरस जो है डायरेक्टली हमारे पिग और ह्यूमंस को अफेक्ट हुआ। उसमें अब ये जो साइकिल है इसमें ह्यूमंस को भी होता है, जिसे हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं। ठीक है, जो फिर पिग्स के थ्रू होता है, फर्म्स के थ्रू होता है, काउ, वेल, हैन, ये सब से भी होता है। और इसमें जो हर एक वायरस अलग अलग है, H4 है, H5 है, H7, H9, ऐसे सब वायरस को टर्म दिया गया है। जो ह्यूमंस को अफेक्टेड वाला वायरस होता है या जो ह्यूमन को ए वायरस अफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ दिस H5N1 वायरस विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन। और जो स्वाइन फ्लू वाला है दैट H1N5 है वो भी। ठीक है, सो इट इज़ वी कैन से डेंजरस फॉर अस, not only for human health or these sectors but obviously हमारा इकोनॉमी, देन हमारा हेल्थ सेक्टर, देन हमारा इकोलॉजिकली भी बात करें तो बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगा अगर नंबर वेरी होगा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या फिर एनिमल्स ले लीजिए, बर्ड ले लीजिए। तो उस सभी पर्सपेक्टिव में इट इज़ अ डेंजरस थिंग फॉर कंट्री एज इंडिया और एनी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, अगला जाते हैं, that is more cyclones in Arabian Sea recently, ministers tell. So हमने कुछ दिन पहले देखा था, जवाद साइक्लोन का नाम दिया था, उतना कुछ अब तक सीवियर इफेक्ट नहीं हुआ है, बट ये बोला गया कि फ्रीक्वेंट और वेरी सीवियर साइक्लोन्स जो हैं आने वाले हैं अरेबियन सी में वेस्टर्न कोस्ट के तरफ।
ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट का उतना बोला नहीं गया, बट हाँ ये बोला गया कि वेस्टर्न कोस्ट से आते आते या तो वो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन ओमान और येमेन में जाके जाएगा, बहुत कम साइक्लोन शायद इंडिया को हिट हो, पर येस अरेबियन सी की तरफ आने वाला है नंबर्स ऑफ साइक्लोन्स, और बे ऑफ बंगाल में उतने नहीं बोले गए। तो अब वेरी सीवियर साइक्लोन अगर मैं बोलूँ तो उसमें वो साइक्लोन्स आते हैं जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होती है, 220 किलोमीटर पर आवर होती है। उससे भी ज़्यादा सीवियर अगर मैं बोलूँ तो वो एक्सट्रीम सीवियर में या एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में आता है। अब ये आर्टिकल के अंदर हमें ये भी पता है कि साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। टुडे विल स्टडी अबाउट हाउ द साइक्लोन्स आर फॉर्म, थोड़ा सा उसके बारे में भी नॉलेज लेना चाहिए कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। एक पिक्चर के थ्रू अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, साइक्लोन का जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से इट स्टार्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, उसे हम आई बोलते हैं। दिस पॉइंट इज वेयर द होल मूवमेंट स्टार्ट्स। अब यूजुअली साइक्लोन क्या है कि साइक्लोन में क्या होता है, जो गर्म हवा होता है, लो प्रेशर एयर जो होते हैं वो धीरे धीरे नीचे जमा होने लगते हैं, एंड इट पुश अप्स दी अनडिस्टर्ब्ड विंड्स अपवर्ड। So cyclones are the rapid inward air around the low pressure area, and ये एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। फिर ये जो वर्ड है साइक्लोन अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक जो ये फॉर्म होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, उसका मतलब साइक्लोस जो वर्ड है ये इसका बेस है वर्ड का साइक्लोन, CYCLOS, जिसका मतलब है जो स्नेक जैसे कॉइल्स करता है वो उसका मतलब है। साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो हमारे टेम्परेट जोन्स और मिडल लैटिट्यूड एरियाज वेव वो सब जगह पे आते हैं। इंडिया में हम हमेशा से ट्रॉपिकल साइक्लोन का टर्म यूज़ करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम देखते हैं, जो क्योंकि हमारा जो कैंसर और कैप्रिकॉन है उसके बीच में जो होते हैं वो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही मेजर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर मैं बात करूँ सिंपल आप लोगों को क्या याद रखना है कि हमारे एयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारा लो प्रेशर एरिया अगर हम देखें लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो कितने बार साइक्लोन्स में क्या होता है कि जो हमारा गर्म हवा होता है, लाइट वे जो हवा होता है वो राउंड बिकॉज ऑफ दी, हम 3-4 फैक्टर ले सकते हैं, एयर भी ले सकते हैं, वाटर वेव्स भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रेशर भी रहता है। ये सब रीज़न से क्या होता है जो गर्म हवा है वो नीचे सेटल होने लगता है और जो अनडिस्टर्ब विंड्स है वो ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लो प्रेशर विंड्स इट स्टार्ट्स टू मूव। आई के पास से वो एक डायरेक्शन में गोल घूमना स्टार्ट करता है, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस क्यूमुलेटिव क्लाउड्स हम बोल सकते हैं, या बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड दिस हवा के और वाटर के प्रेशर के वजह से इट स्टार्ट सर्कुलेटिंग, और प्रेशर जो है मेन उनका वार्म एयर की वजह से होता है, तो वो धीरे धीरे इट स्टार्ट्स मूविंग, एंड दैट वे हमारा साइक्लोन बनता है। अगर आगे कभी आएगा तो प्रॉपर इफ़ पॉसिबल आई विल शो यू मोर पिक्चर्स कि साइक्लोन्स का वे कैसा है फॉर्मेशन का, ठीक है। साइक्लोन्स कभी भी बनने के लिए ना 2-3 चीज़ें फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कि वो जो सी सरफेस है, जो सी का पानी है वो 27 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर तक होना चाहिए, क्योंकि तब वो गर्म हवा बनना चालू करता है या वो प्रेशर बनाना चालू करता है हॉट एयर का, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। उसके साथ जो वर्टिकल विंड्स फ्लो करते हैं, ठीक है, हमने ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज सुना है, और अगर ऑल ओवर ग्लोब में बात करें तो हम वर्टिकल विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल सेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। फिर उसी के साथ लो प्रेशर जो है एरिया सर्कुलेशन बनना चाहिए, तभी जाके ये आई की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट आर नीडेड if any cyclone is formed. सो यूजुअली साइक्लोन आप नोटिस करोगे आपको ठंडे पानी में बहुत रेयर मिलेगा। इट विल बी फॉर्म्ड वेयर जहाँ पे ज़्यादा हीट हो, ज़्यादा वाटर वेपर्स हो, ज़्यादा वार्म ओशन मिले उसको, ठीक है, जिसके वजह से क्यूमुलस ये जो क्लाउड होता है, ये जो क्यूमुलस का क्लाउड बोला है, ये एक तरह का कंडेंसेशन स्टार्ट करता है। करते करते मेच्योरिटी स्टेज में आने के बाद क्या होता है कि इट स्टार्ट्स, जो एयर है वो स्प्रेड आउट होने लगता है बाहर के तरफ, एंड करते करते इट स्टार्ट्स टू रोटेट।
ठीक है। सो इन दैट सेंस में हमारा साइक्लोन्स बनते हैं। ये आर्टिकल में ऐसा कुछ ये नहीं बताया था, जस्ट आई वांटेड टू नो लेट यू नो कि साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई थिंक सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।